Uh, Hi guys, welcome back. My name is Chakresh Tiwari and this video is gonna be about Craftchala only. So I'm again coming up with a new video for Craftchala. So I was just getting a lot of doubts in my comment section and in the Instagram DM regarding the codes and the placements and lots of things you people were asking. So I thought to create an integrated video where I'm gonna cover all your doubts, basically the important doubts which you people were asking on the comments, and I could not reply on that. So this video is for you all who are gonna join Craftchala or thinking about joining. So starting with the first doubt is, can I get placement on my own other than Craftchala? If I got one myself off campus, would give to pay fee then, and how much is the fee? Yeah, if you are thinking to opt out from the Craftchala's placement session, but you are in the course and you have completed the course, now it is the placement time and you think you can get better opportunities off campus and you are getting any better opportunities than Craftchala from off campus placement, if you are getting, then yeah, you can opt out, but you will have to pay the fees, which would be somewhere around 1.3 to 1.5 lakh. I am not sure about the numbers. It would be uh, like this. You need to see the agreement and all. So yeah, you will have to pay the fee. ब्रो मीरो मैपिंग क्या है और इसका डिटेल्स कैसे कहाँ से करते हैं? मीरो मैपिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई विल कवर दैट थिंग इन अनदर वीडियो. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू Craftchala. What hours do you work? My working hours are 10 to 7, you can say. I just passed my 12th. Can I join Craftchala? Yes, you can join Craftchala. There were some of my batchmates who just did their 12th, they were in the graduation, some were pursuing graduation and some have completed. So yeah, you can join. Graduation is not mandatory. Hello sir, what is crucial matrix? There is no material related to crucial matrix. Can you explain please sir? That I'm gonna cover in another video. सर मुझे डीएम का नॉलेज है. What is the EMI process? Yeah, EMI related there were lots of doubt. Like if I am sitting in the placement and I got placed, then how do I have to pay the fees to Craftchala? Like they are asking for 3 months salary. So do I have to give 100% of my salary in one go, or what is, like, how can we go ahead with that option? So there is the EMI process. Like you can select 3 months, 6 months, 12 months, 15 months or 18 months, 24 months, whatever you want. You can select the duration of for your EMI. You can pay the fees in that tenure. Like every month some amount will be deducted to your bank account. So that is up to you how you want to pay the fee. So this was about fees. कितनी एज मैक्सिमम होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए? There were lots of doubts I was getting. Some people were asking कि my age is 26, I'm 28, I'm 30, I'm 25, should I join? So the simple answer is yes, you can join, because it is not about the age. There were some of my batchmates which were in the age of 28, 29, 30 were somewhere from 30. Like the number is rare. Like there were only 2-3 people in that age group. Mostly because you will get 18, not 18 actually, 20 to 24 का जो age का segment है, there mostly people were from that age only. But if you are in 26 and you feel कि you should learn the digital marketing thing and you should upskill yourself, then you can join. Like there is no restriction and there is no barriers you will face in the placement. Like if you are justifying your answers, you are like, if you are quite genuine with your answers and you are able to answer all the questions and you are having good skill, good knowledge, then you are gonna like select in any of the companies. So like this age will not be actually barrier for you for joining the Craftchala thing. So whatever age you are in, you can join. What if someone fails? Can we give again? I think he is talking about the entrance exam for Craftchala. So yeah, if you are not selecting in one go, then you can reapply for the exam and prepare accordingly. How to prepare? Which material to refer? For preparation, for like enter into the Craftchala entrance screening test, you can say. इसके लिए I have created 2 videos, one for the sectional thing and as for SOP I have created 1 video also. So you can just refer to that video. I will just attach that link in my description. You can just go through that video and prepare accordingly. There is like बहुत नॉर्मल सा एग्जाम होता है, उसकी स्ट्रेटजी मैंने पूरी बना रखी है ऑलरेडी एक वीडियो में. तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. SOP के लिए भी आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो सेपरेटली. SOP में कुछ लाइक अलग से अगर डाउट है तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन. SOP के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो बिफोर प्रिपेयरिंग योर SOP. And if you are having any doubt, you can just ping me. Bro, what about language aptitude? You didn't talk about language. Language, there were like lots of people who were asking the course language. Course की language पूरी English होने वाली है और it will be like my English speaking is not very good. Can I survive in that course? Should I join because my English speaking skills are not very good? So in one line, the course is in English only. You will have to be good at English. If you are lacking somewhere, like if your speaking skills are not very good, then also you can join, because there will be many human skills session in the course only. Like
इन दैट 3 months ऑफ टेन्योर यू आर गोना स्किल अप, तो उसमें धीरे धीरे इंप्रूव हो ही जाना है, लाइक इंप्रूव कर लोगे। इफ़ यू रियली वांट यू कैन डेफिनेटली improve your speaking skills। तो स्पीकिंग का इतना मतलब इफ़ यू रियली वांट यू कैन डेफिनेटली improve that thing। तो टाइम के साथ साथ यू कैन improve it, but the course is gonna be in English only, the lectures will be in English। if you want to ask any doubt you can ask in Hindi also, but the environment you will get, oh my god, let me just mute my phone। the environment you are going to get is na, तो you are going to ask in English only। तो the course will be in English, the lectures will be in English, the discussion 80% 70% discussion will be in English, because there will be lots of people from another cities who will not actually understand Hindi। so it will be like in English only, because the mock interviews, the actual interviews, everything will be in English। but don't worry, if you are not very good at speaking in English then you can definitely learn it, you should like practice it, because there will be lots of human skill session also। तो उसमें धीरे धीरे करके you will have to improve it। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ भाई यार ऑफलाइन होता है कंपनी में जाके, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू थिंग, लाइक ही इज़ आस्किंग कि इंटरव्यूज़ ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। सो आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि ऑल द इंटरव्यूज आर गोना बी ऑनलाइन ओनली, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू सिट इन योर हाउस एंड फेस द स्क्रीन एंड यू विल हैव टू गिव द इंटरव्यू। बट इफ यू आर गोना सेलेक्ट फॉर एनी कंपनी, लाइक इन द प्लेसमेंट, इफ यू आर गेटिंग सिलेक्शन फ्रॉम एनी कंपनी, देन you will have 90% are the chances कि you will have to relocate, because the companies now are coming are like most of the companies are based on office only, तो you will have to relocate, और it depends on the policy of the company also कि ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है। तो 80% चांसेस हैं you will have to relocate। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कौन कौन सी सिटीज़ में होता है। आई एम फ्रॉम कोलकाता, somebody was asking आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो हाउ मेनी चांसेस आर देयर कि मैं कोलकाता में मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर नो चांसेस ऑफ गेटिंग selection in Kolkata, because the major companies are coming from 3-4 cities only, which is Gurgaon, Gurugram, whatever you say, and Pune, Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad also। So these are the major cities, 6 cities जहाँ से कंपनीज आती हैं, या चांसेस आर देयर, थोड़े से बहुत चांसेस हैं, कभी कभी अहमदाबाद से भी आती है, कभी कहीं से भी आ सकती है, बट बहुत रेयर। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपकी सिटी में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, यू विल हैव टू डेफिनेटली रिलोकेट, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 80% चांसेस है यू हैव टू रिलोकेट। इफ़ यू आर फ्रॉम बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, यहाँ से हो तो नो नीड टू वरी, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है। बट अगर आप कहीं और से हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हूँ, तो वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उन्नाव में मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बस इतना बता दो कि इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो क्या मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ। देखो इंग्लिश का मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इफ़ यू आर नॉट गुड एट स्पीकिंग यू कैन डेफिनेटली लर्न टाइम टू टाइम, टाइम बाय टाइम। मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में। कैन यू प्लीज़ शेयर द सिलेबस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट दे आर टीचिंग यू। गुड क्वेश्चन। सिलेबस इज़ लाइक किसी भी, लाइक आप वेबसाइट में कोई भी सर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस, लाइक इफ़ यू आर सेलेक्टिंग पेड मीडिया देन इट वुड बी फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एड्स मैनेजर, गूगल एड्स मैनेजर, एंड इफ़ यू आर सेलेक्टिंग SEO देन SEO के थोड़े से टॉपिक्स होते हैं, गूगल एनालिटिक्स वुड बी कवर्ड। इसके लिए आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्या क्या करिकुलम में है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इन क्राफ्टशाला, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, दे आर गोना गिव यू ह्यूमन स्किल सेशन, दे आर गोना गिव यू एक्सेल सेशंस, देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग थिंग। तो बहुत सारी चीज़ें, एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस थिंग इन अनदर वीडियो। तो Bro, I am a student of Craftshall MLP14. I am in the 4th week SEO specialization. If they drop 50% of student in the 8th week review, please tell me। हाँ, there are lots of existing students who were asking कि 3 week के रिव्यू के बाद क्या होता है, 8 week रिव्यू के बाद क्या होता है, 12 week रिव्यू के बाद क्या होता है। If I am not performing well, are they gonna remove me or are they gonna like kick me out? क्या मेरे को निकाल देंगे, ऐसा कुछ बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो फर्स्ट थिंग आई वुड से अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, यू नीड टू मेंटेन द 90% प्लस अटेंडेंस। अगर इससे कम है तो देयर कैन बी एन इशू, वो दे कैन आस्क यू टू लाइक लीव द opt out the Craftshalla program basically if you are not maintaining the attendance and your performance is not good, but that's very 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 rare thing। if you are like into the Craftshalla ये सब चीज़ें मैनेज होने वाली है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि you will have to give 10 AM to 8 PM और उसमें सब कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा, you are not having any another option। तो ये एक इशू नहीं है, हटाते कि नहीं है। इफ़ यू आर क्रॉसिंग लाइक 3rd वीक से जब आप आगे बढ़ जाते हैं, 4th वीक में एंटर कर जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं हटाते, किसी को नहीं हटाते हैं, डेफिनेटली किसी को नहीं हटाते हैं। अगर आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, आप क्लास भी नहीं अटेंड करोगे तो क्या, फिर तो हटना ही पड़ेगा, फिर तो दे आर गोना किक यू आउट। बट यू हैव टू मेंटेन द अटेंडेंस, यू हैव टू लाइक सबमिट ऑल द असाइनमेंट्स। अगर आपके असाइनमेंट्स कम हैं तो दे विल डिफर यू, लाइक असाइनमेंट्स कम इन द सेंस कि असाइनमेंट में कुछ इशूज़ हैं या असाइनमेंट आप टाइम पे सबमिट नहीं करते तो दे आर गोना डिफर यू इन नेक्स्ट बैच। तो आप जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करोगे, आपका नेक्स्ट बैच डिफर कर सकते हैं। आप 14th बैच में हो तो 15th में कर देंगे, 16th में हो तो 17th में कर देंगे।
तो वो टाइम आपका बढ़ने वाला है। 3 मंथ का कोर्स आपका 4 मंथ का हो जाएगा, फिर आप परफॉर्म नहीं करोगे 5 मंथ का हो जाएगा, फिर प्लेसमेंट में टाइम लगेगा। तो इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल देन दे आर गोना डिफर यू, डिफर कर देते हैं। हर बैच, मेरे टाइम पे हर बैच से 10-15 बच्चे डिफर हो जाते थे। अभी पता नहीं कैसे क्या है, कितना डिफर करते हैं, बट या डिफर कर देते हैं। एंड अगर 3 वीक के रिव्यू के पहले हटाते हैं आपको, यार 3 वीक हो गए हैं फिर उसके पहले हटा रहे हैं, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी और आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और जनरली किसी को नहीं हटाते हैं जिसका अटेंडेंस में कोई इशू नहीं है, जिसके असाइनमेंट सारे सबमिट है, तो किसी को नहीं हटाते हैं। और अगर आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा है, ठीक है, बहुत कम स्कोर, एकदम स्कोर अगर कम होगा तो भगवान ही मालिक है फिर आपका। बट अगर आपने क्लासेस सही से करी है, असाइनमेंट सही से करे हैं, तो स्कोर आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। और अगर स्कोर ठीक होगा तो वो आपको हटाएंगे नहीं, हटाते। वैसे मैंने 3 वीक रिव्यू में तो बहुत कम लोगों को सुना है कि हटा दिया, बिकॉज अटेंडेंस, असाइनमेंट एंड टेस्ट 3 चीज़ें हैं। आप टाइम पर पूरा लेक्चर अटेंड करो, सही से सुनो जो बताया जा रहा है, असाइनमेंट अच्छे से करो और टेस्ट अच्छे से दो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन द प्रोग्राम बट सो मैनी नेगेटिव रिव्यूज़ ऑन GBL. What is GBL? Reviews on GBL confused me. I think I don't know what is GBL. हाँ, तो so many negative reviews. I personally have not faced any problem so that I can blame them कि यार मेरे साथ ऐसा होने गलत, मतलब ऐसा कुछ मैंने कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता यार। निगेटिव रिव्यूज़ किसी का कुछ अगर एक्सपीरियंस है, ही इज़ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस ओनली, और पता नहीं उसमें भी क्या सिचुएशन थी, हमें कुछ पता नहीं है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट अगर आपको कहीं निगेटिव रिव्यूज़ भी दिख रहा है और उस पर आपको डाउट है, तो मतलब मेरा तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मतलब एक चीज़ ऐसी, बस एक लाइन में बोलूँगा कि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर जो एक्सपीरियंस मेरा था मैंने आपको वीडियो में शेयर किया। मेरा प्लेसमेंट लेट हुआ, येस डेफिनेटली प्लेसमेंट लेट हुआ। मैंने सारे वीडियोस बनाते थे उस टाइम पे भी, मैंने वीडियोस बनाए और आपको बताया कि प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। और अभी भी प्लेसमेंट का मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार कोर्स के बाद कितना टाइम लगेगा। इट मे टेक 3 to 4 month आफ्टर द कोर्स, so you will have to be prepared, you will have to be patient and you will have to keep on preparing for the interviews. तो ऐसा मत सोचना कि 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट हुआ, 4th मंथ स्टार्ट हुआ, 1st वीक में मैं प्लेस हो गया, 5th वीक में मैं बैंगलोर चला गया, 6th वीक में मैं पार्टी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। 3 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट होगा, 4th मंथ से आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपके बैच के बच्चे प्लेस होना स्टार्ट होंगे और फिर जाके आपका प्लेसमेंट होगा। इट मे टेक सम टाइम, तो यू विल हैव टू बी पेशेंट। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और चाहते हो कि 3 मंथ के बाद तुरंत प्लेसमेंट हो जाए, तो मे बी दिस प्लेस इज़ नॉट गोना बी फॉर यू। यू विल हैव टू वेट फॉर मे बी 5 मंथ, मे बी 6 मंथ, पूरा ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कोर्स को मिलाकर, मे बी 7 मंथ। तो ये हो सकता है, ये एक फैक्टर हो सकता है कंसीडर करने के लिए। इस डिग्री मैंडेटरी फॉर क्राफ्टशाला? नो, इट इज़ नॉट। इंटरव्यू में इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी? या इट इज़ कंपलसरी। अगर आपसे हिंदी में वो बात करने लगे सामने वाला, तो अच्छी बात है, फिर हिंदी में बात करो आप। बट मेरे से अभी तक कि किसी ने ऐसा नहीं हुआ, इंग्लिश में ही सारे इंटरव्यू हुए हैं, तो या इट इज़ मैंडेटरी। आपकी अब जॉब लग गई है क्राफ्टशाला के थ्रू? यस सर, मेरी लग गई है। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। हाय, आई हैव पास्ड द SOP राउंड एंड आई हैव बीन गिवन द चॉइस टू चूज DMM एंड CSM. आई हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, सो कैन बी चैट? यस वी कैन, but I am not the right person who is going to give you a perfect answer कि you should join DMM or CSM. DMM is digital media and marketing, CSM is content and social media marketing. I would suggest जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, आप दोनों के टॉपिक्स से थोड़ा सा गो थ्रू करो। CSM क्या है, यूट्यूब करो, व्हाट इज़ CSM, कंटेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ओवरऑल मोटा मैं बता देता हूँ। डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग में you are gonna learn some digital marketing tools like Google Analytics, Google Ads, SEO, Facebook Ads, or these are the things you are gonna learn. CSM में you will learn how to write an effective copy, like content writing is there, social media handling is there, and creating headlines, ad copies, ये सब बनाना like social media marketing में आपको सिखाएंगे। तो it is totally up to you, opportunities are same, it is just like आपका किस में इंटरेस्ट है और आप किस में कितना ऊपर तक जा सकते हो। आपको लगता है कॉन्फिडेंस CSM में है, तो यू कैन गो फॉर द CSM। मुझे कंप्यूटर में कुछ नहीं आता, तो एनी सजेशन कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं? कंप्यूटर में कुछ नहीं आता यार, थोड़ा बहुत तो मतलब पहले कंप्यूटर सीख लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोना बी ऑन कंप्यूटर ओनली। तो थोड़ा सा चलाना सीख लो, मतलब 10 दिन दोगे सब कुछ आने लगेगा, 10-15 दिन, थोड़ा बहुत टाइम दो। मतलब टेक्नोलॉजी के इस जनरेशन में मैं तो नहीं बोलूँगा कि नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे सब सीख जाओगे यार। मतलब फेसबुक एड्स, गूगल एड्स भी एक बार उस पर घुसे रहोगे तो बहुत चीज़ें, कंप्यूटर में एक बार घुस गए तो आ जाएगा यार। सिलेबस आई नीड फॉर क्राफ्टशाला, सिलेबस आई नीड फॉर क्राफ्टशाला, पैकेज, गुड क्वेश्चन ब्रो। इंस्टाग्राम मैसेज, पर्सनल मैसेज, ठीक है ब्रो। व्हाट इज़ योर सैलरी? ओके भैया। मार्केटिंग एक्विपमेंट वाला पार्ट में रिवर्स मार्केटिंग के जो 3 क्वेश्चन रहेंगे उनको कितने वर्ड्स में टाइप करना है ईच क्वेश्चन? कितने वर्ड्स में ईच क्वेश्चन? आई थिंक 150 to 200 वर्ड्स। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग इन द नंबर्स, क्योंकि 150 to 200 होता है
बट मैं एक बार ही मेरे को DM कर देना अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक डाउट है, तो मैं किसी से अपडेट लेके आपको बता दूँगा। उसके बाद ब्रो क्राफ्ट चला आस्क 16.5 के बिफोर ज्वाइनिंग एंड आई एम कंप्लीटेड assignment and SOP is pending. Could you please tell 16.5 k pay or not, or after placement will be pay only? Please clarify my doubt. Bro, it is 16.5 k is a registration fees which is 14,000 is the fees and plus 18% GST, whatever the GST amount is. So this is 16,520 रुपये. So this is the registration fee which you will have to pay before joining the course, और बाकी की fees you will have to pay after getting the placement. उसके बीच में कोई भी चार्ज नहीं. I'm only understand English language but can't speak English. Can you suggest me? Yeah, I have already answered this question. MLP क्या है? Good question. MLP क्या है? Bro, जॉब लगने के बाद एंड क्राफ्ट चाला को पेमेंट करने के बाद जॉब से निकाल दिया तो गुड क्वेश्चन. ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत रेयर होता है. 100 में 2-3 लोगों के साथ हो सकता है, 2 लोगों के साथ हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है. बट चांसेस अगर कोई मास ले ऑफ है या कुछ ऐसा ले ऑफ जैसी चीज़ होती है वो खुद से निकालते हैं, तो यू कैन अगेन गो फॉर क्राफ्ट चाला, अपना इशू रख सकते हैं एंड अगेन सिट इन द प्लेसमेंट. बट अगर आपने खुद से जॉब छोड़ा है या आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया है कंपनी में जिससे उनको निकालना पड़ा, देन नोबडी इज़ गोना हेल्प यू. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. At the age of 42 can join with 5 years sale experience. Yes, you can join if you want to learn. Whether class is taken every day or 2 days in a week. Every day bro, Sunday is off only, और उसमें भी आपको खुद से देना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो या एवरी डे. भैया तुम हमारी वजह से कॉपीराइट क्लेम क्यों? कुछ भी भाई. सैलरी ग्रोथ कैसा है इसमें? अच्छा है, सैलरी ग्रोथ इज़ गुड. इफ़ यू आर गुड देन नोबडी कैन स्टॉप यू. भाई क्राफ्ट चाला बड़े बड़े MNCs का प्लेसमेंट पिक्स दिखा रहा है फॉर एड्स, बट लोगों को प्लेसमेंट स्टार्टअप पे ही क्यों मिल रहे हैं? सिर्फ बोथ आर देयर. इट इज़ नॉट जस्ट स्टार्टअप. PGD ग्रुप एम आर ऑल्सो देयर, बहुत बड़ी MNCs हैं. सैच बैंक इज़ ऑल्सो देयर एंड ग्लोबल इज़ ऑल्सो देयर. हाइव माइंड्स इज़ ऑल्सो देयर. छोटे छोटे भी कंपनीज हैं, बड़े बड़े भी कंपनीज हैं, स्टार्टअप भी हैं, और जो न्यू अराइवल हैं वो भी हैं. सब कुछ है यार. So if you are someone who is gonna apply for the क्राफ्ट और क्राफ्ट मार्केटिंग लॉन्च पैड के प्रोग्राम में, if you want to apply, अगर सोच रहे हो आप अप्लाई करने का, तो you can apply via my रेफरल लिंक. आप मेरी रेफरल लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो के, तो you can go through that रेफरल लिंक एंड अप्लाई. आप उससे अगर रजिस्टर करते हो तो you will be getting 1000 का ऑफ ऑन योर फीस. बस यार इतना ही बहुत था, और कुछ तो आई डोंट थिंक कोई कुछ हमें लाइक बचा हुआ है. फिर भी कुछ स्पेसिफिक डाउट हो तो कमेंट में कर दो. कमेंट में मैं टाइम मिलेगा आई विल जस्ट आंसर दिस थिंग, और आई विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर दैट. और वीडियो फोटो आ रहा है मेरा? 1 मिनट रुक जाओ. इतना ही तक आ रहा है अभी. हाँ सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर. दीज ऑल द थिंग्स. आपके सारे डाउट्स थे. अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही हो, इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू अ लिटिल बिट, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, चैनल को थोड़ा सा नहीं पूरा ही लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो. आई विल अगेन कम अप विद अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो. तो वीडियो की अपडेट मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ओके, बाय बाय, टेक केयर. विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.